Okay, everybody. Rohit Kalkal is there. Sangram, Pushpit, Harsh Yadav, Loki, Manish, Arnab, Shravan, Sheetal, Anush, Maninder, Avito. Very good. Today we have a bigger turnout. So, community is growing. Very nice. Good evening, everybody. My name is Captain Amit Bhandari. For all those who don't know me yet, and I am a relationship facilitator helping you make better relations out at sea, in your house, and in your corporate office. And I'm the founder of Navigate the Ship of Your Life. Why navigate the ship is because we are all shippies and we are all navigating, and we're navigating the ship of our own life, which is in our own hands. And the passage plan you will lay for your own ship and your own plan, and it's very much in your hand. And guidelines. This is a very, very loving community that we are building. You can join me on my YouTube channel. You can join me on the Telegram. You can join me on Instagram. I'm also on LinkedIn. But our community is very, very loving, you know. हमें किसी का hate conversation नहीं करना है, हमें किसी का religion conversation नहीं करना है, हमें किसी की politics पे नहीं जाना है, कौन कहाँ का king बना है, ये सब में हमें we are not into all this. So this is a community which is universe based. It is based on the beliefs that I carry and that make my life. It is based on the intelligence of the universe, you know, the intelligence of the universe, because the universe is not just your brain. Your brain is not the controlling power of your body. I hope all of you know that. Your brain is only a coordination center. What do you think is the most intelligent part of your brain, of your body? Mind. Mind is a very big, very different definition. वो मैं आप लोगों को down the line बताऊंगा. What is really the mind? It is not the mind. So what do you think is the most intelligent part of your body? Brain, heart, mind. Okay. और क्या guesswork है? Everybody is coming in at the Indian Standard Time. 7 बजे बुलाया तो 7:05 पे आना चाहिए. 7:10 पे is really at the right time to enter. So guys, whoever is here, welcome. And okay, so which is the most intelligent part of your body? Come on guys, let's give it another 10 seconds. Then we'll get on to the main topic. Soul. Are baba. Spinal cord, very good. Okay guys, good attempts. So the most intelligent part of your body is the entire body. There is not any single area which is intelligent. There is entire area which is intelligent. आपको पता है आपका एक एक सेल के अंदर, एक एक सेल के अंदर there is a nucleus, and around the nucleus there are these electrons which are moving around, you know. That's what an atom is consisting of. And all that has an intelligence to rotate around each other. And वो सेल के अंदर एक प्रोटीन है, वो प्रोटीन वो उसको यूज करता है, उसको कंज्यूम करता है, उसको बाहर निकालता है. ये कोई ब्रेन नहीं बता रहा है उसको करने के लिए. It has its own intelligence. Your hand has its own intelligence. Your body has its own intelligence. Mouth has its own intelligence. They are only getting a coordination from the brain that okay, अभी मुझे इसकी जरूरत है, पर वो आपकी बॉडी में एक white blood corpuscles, red blood corpuscles सब घूम रहे हैं. White blood corpuscles are fighting all the diseases. They are going around and looking inside your body, and it is looking for viruses to fight. उसको ब्रेन नहीं बोल रहा है जाओ अभी इधर जाओ ढूंढो, उधर जाओ ढूंढो. वो कंटिन्यूस तुम्हारे खून में घूम रहा है एंड आइडेंटिफाई कर रहा है कोई आउटसाइड पार्टी आई है या नहीं आई है. परफेक्टली मेड मशीन, परफेक्टली मेड मशीन. इतना इंटेलिजेंटली हम लोग काम करते हैं that we take it for granted, you know. The first ship and the waiting for that ship. So how many of you are waiting for your next ship to join, or how many of you are in between that? So I have already Can said, raise and then in between now I'm waiting for my exams. competency? It is like
it is such an amazing feeling, you know. It is a very, very great feeling when you get your certificate the first time and you go on board as a third officer. First time, you know, standing there and doing your first navigational watch. It's an amazing feeling. So, how many of you are waiting for a ship? Actually, waiting for a ship. You know, the biggest problem that starts in our life, it starts after college. Can anybody guess why that is so? Why after college mainly all the problem starts, the confusion starts, and we start getting so worked up? What are the three reasons that you think, you know, till you are in school, you have a clear goal. You have a goal that you have to get to your 10th standard. लड़का स्कूल में होता है तब तक वो कुछ नहीं सोचता है, उसको सिर्फ पता है माँ बाप ने बोला हुआ है कि 10वीं करनी है और उसके बाद 12वीं करनी है, और ग्रेजुएशन तक इट स्टार्ट्स बिकमिंग अ ऑप्शन, यू नो, डिपेंडिंग व्हाट यू वांट टू गेट इनटू. सो when you have a clear goal till your 10th standard until your 12th standard, you are never deviating. हम लोग सिर्फ, हमारी दुनिया सिर्फ वो स्कूल के अंदर घूमती है और हमारी दुनिया उतने में ही रहती है, फ्रेंड्स के साथ रहती है, एंड देन वी जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट पासिंग आवर सेकंड 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड है वो, कोई उसको क्वेश्चन नहीं करता है. आज तक कोई क्वेश्चन नहीं करता है कि क्यों 10वीं तक पढ़ना है. मे बी वेरी फ्यू पीपल क्वेश्चन इट, बट द फैक्ट इज that you accept that that is your goal. That is why you don't have a confusion, क्योंकि वो आगे नजर आ रहा है. And then you have 12th as a goal, and that also is almost clear, and you don't have a confusion. But when after 12th you get into a different field, you get into a time, like somebody wrote that it time comes to start making decisions. That is when the problem starts. And that is also an age of hormonal changes in everybody, right from the teens, from 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. This age is such, you know, हमारे अंदर बहुत hormonal changes आते हैं. दाढ़ी आती है, sexual desires आती हैं, and our confusions start coming up because our conscious mind gets formed. So our conscious mind starts telling us various things about what I want to achieve, what my school has taught me, what my religion has taught me, what my social circle has taught me, and the mind starts to question all of that, starts to question the parents also. कि अरे पापा आपको क्या मालूम है यार, आप मेरे से यार 30 साल बड़े हो, आपको क्या इतना बड़ा जनरेशन गैप है, यू हैव नो आइडिया क्या आजकल क्या हो रहा है. एंड हमें ये लगता है कि माँ बाप को तो लीस्ट पता है, यू नो, वो तो एक नंबर के बेवकूफ बैठे सारे माँ बाप. सो what happens is because the conscious mind gets completely clouded with the worldly things. वो एज ऐसी हो जाती है, that time becomes such that we become very, very clouded. And that is the time when we are also, let's say, into merchant navy, then we are trying to wait to get our next ship, and that waiting of the ship becomes such a nightmare because सबका प्रेशर है, माँ बाप का प्रेशर है, कहीं से पैसे ले रखे हैं, फ्रेंड्स देख रहे हैं, अरे यार क्या कर रहा है आजकल, अरे अभी भी घर में ही बैठा है तू, गया नहीं. Especially do you know there's this a person, shippy guy, he has killed his neighbor because his neighbor was always asking him when are you going to the ship. तो उसने एक ही टाइम में उसने नेबर को ही उड़ा दिया उसने. वेरी सैड सिचुएशन, आई एम श्योर बहुत गलती से हो गया उसको, बट वीडियो. देन what feelings came about when you were joining your first ship and how did you feel?
So everybody, we realized that Ronak had a situation where he did not get a ship for many years. There was some reason or the other. Lockdown is also one reason. लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि लोगों को सरप्राइजेस पसंद है या नहीं. सो पीपल सेड आई लव सरप्राइजेस एंड लॉकडाउन इज आल्सो अ सरप्राइज, है ना. तो हम लोगों को वो भी लाइक करना है, क्योंकि सरप्राइज तो सरप्राइज होता है. अभी सरप्राइज हर समय तुम्हारे हिसाब से तो नहीं मिलेगा. तो मे बी दिस सरप्राइज इज ग्रेट फॉर समबडी, मे बी इट्स नॉट सो ग्रेट, बट इट इज ऑल इन योर माइंड. अभी हमारे पास हर समय एक ना कोई रीजन होगा व्हाई वी कुड नॉट गेट ऑन अ शिप, व्हाई वी कुड नॉट फॉलो दैट पैशन. बट deep down, this is for all of you, keep in mind, deep down, the universe is perfect. आप अगर किसी जाके पेड़ को उंगली ना करो तो वो पेड़ अच्छे से ही उगेगा. उसके सीड को पानी भी नहीं चाहिए आपसे, वो अपने आप जमीन से पानी खींचेगा और वो अपने आप ग्रो करेगा. और एप्पल के पेड़ से एप्पल का पेड़ ही निकलेगा. एप्पल के सीड से, मैंगो के सीड से मैंगो का ही पेड़ निकलेगा. इतनी परफेक्शन है. तो इतनी परफेक्शन में हम लोग क्यों इतने दुखी हैं? वो पेड़ तो दुखी नहीं है. वो पेड़ तो सिर्फ एक काम कर रहा है अपना. उसका काम है बढ़ना और उगना. उसने ये नहीं सोचा हुआ है कि मुझे आज इस चिड़िया की तरफ फ्लाई करना है. उसको पता है कि वो पेड़ है, उसको पेड़ का ही काम करना है. हमारी डिमांड्स, हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती ही जाती हैं. वी नेवर लर्न हाउ टू फ्लो विद लाइफ. आज की सबसे बड़ी लर्निंग मैं जो आप लोगों को दूंगा, जो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किल से सीखा, गिर गिर के सीखा, मार खा खा के सीखा. द बिगेस्ट लर्निंग इज दैट लाइफ इज अ टग ऑफ वॉर. टग ऑफ वॉर का गेम खेला है सबने, वेर यू पुल. आप पुल करो, करो उतना ही करो जितना कर सकते हो. एंड जब कोई टीम हार रही होती ना, तो कभी कभी हम लोग रस्सी छोड़ देते, हम लोग ढीला कर देते हैं हाथ, तो रस्सी निकल जाती है हाथ से. सो लाइफ इज लाइक अ टग ऑफ वॉर वेर यू पुल, बट इफ यू फाइंड लाइफ इज नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन, यू ओपन योर हैंड एंड लेट इट गो. अगर आप अपने पैशन पे हो, अगर आप अपने लाइफ प्लान पे हो, लाइफ प्लान इज अ वेरी बिग टॉपिक. हाउ टू नो इफ आई एम ऑन माई लाइफ प्लान. मैं अपनी जिंदगी में जो करने आया हूं, मैं वो करने की लाइन पे हूं या नहीं हूं, ये आंसर मुझे कैसे मिलेगा? दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑन हाउ डू आई नो इफ आई एम ऑन माई लाइफ प्लान. सो टिल यू डोंट नो, यू डू टग ऑफ वॉर. आप खींचो 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 खींचो, नहीं आ रहा है, हाथ ढीला करो, छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ. बिकॉज जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल वेयर ही इज नॉट गेटिंग अ शिप, समथिंग और द अदर इज हैपनिंग. मेडिकल हो गया, कोविड हो गया, एजेंट गलत मिल गया, पैसे खा गया, ये हो गया वो हो गया. ये सब आपकी लाइफ की स्टोरी है. ये स्टोरी के पीछे के आंसर को सुनो. ये स्टोरी के पीछे एक आंसर है कि भाई तुम्हारा लाइफ प्लान ये नहीं है. लाइफ प्लान पता करने के लिए बेस्ट एक तरीका होता है, काफी तरीके होते हैं. मैंने अपने कोर्स में बताया हुआ है, whoever's done the course, the right career choosing formula, उसमें एक तरीका ये होता है, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम आउटपुट. You know you're on your life plan. You know you're in the right career. Minimum effort, maximum output. अभी इसको देखने के दो तरीके हैं.
एक फिजिकल लाइफ का तरीका है कि मैं एक्चुअली कितना एफर्ट डाल रहा हूं. जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, मैं उनका नाम बार बार नहीं लेना चाहता. सो जो एग्जांपल था उसमें he is continuously having a problem. Something or the other is going wrong. Something or the other is going wrong in the direction that he's trying to go. But you know what? Life is taking him in another direction and he's getting a job and he's actually growing there. So realize that when life is taking you somewhere else and making it easy for you there, please flow with life. जहाज की नौकरी के लिए आपने जितना एफर्ट या पैसा डाला वो आपके लिए एक लर्निंग बन गया, और वो लर्निंग लेके आप कभी अपनी इस नौकरी में और कहीं डूबोगे नहीं, क्योंकि आप कहीं हाथ जला के आए हो. तो वो लर्निंग है ना, हर फील्ड में होता है. और हर फील्ड में ये भी हो रहा है कि कुछ लड़कों को जब वो कोर्स करते हैं उनको एकदम जहाज मिल जाता है, वो एकदम पहले शिप पे चले जाते हैं, वो एकदम अपने 2 जहाज 3 जहाज में कैडेटशिप खत्म कर लेते हैं और सेकंड ऑफिसर भी बन जाते हैं. एक एग्जांपल हूं मैं अपने करियर में. बट हो सकता है आई वॉज ऑलवेज ऑन माई पैशन पाथ. सो यू कैन से बाय चांस आई गॉट माई पैशन एंड आई गॉट माई लर्निंग. बट ये चीज हर एक के साथ नहीं हो रही है. तो मैं ये अपना एग्जांपल लेके मैं नहीं बोल सकता अरे तुम्हें जहाज मिलेगा, तुम्हें जहाज मिलेगा, डोंट वरी मुझे भी मिला. बट इफ यू आर डेस्टिन्ड फॉर मर्चेंट नेवी and if that is truly what life wants to give you, you will get. But if all your efforts are going and failing, remember life is giving you a different message, so please listen. मैंने एक और वीडियो में बोला था कि कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे को जहाज नहीं मिल रहा है पर मुझे टग मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, पर वो कंपनी में बोल रहे हैं तुम अभी यहाँ गुजरात में ये एमबीसी पे चले जाओ, ये कर दो. माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ले लो. क्यों? क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपको पता चलेगा, हो सकता है लाइफ आपको बता रही है कि भाई तू जहाज की नौकरी कर ही नहीं पाएगा. तो अगर वो चीज आप एक एमबीसी पे जाके सीख जाते हो 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर कि ये नौकरी मेरे लिए नहीं है, तो आपका तो करियर बच गया. सो इफ लाइफ इज गिविंग यू अ टेस्ट देन टेक इट. अनदर थिंग इज if life wants you to go deeper into merchant navy from the MBC, if you're really performing and you're very passionate, आपको एमबीसी से कोई ना कोई उठा लेगा, you know, because बहुत लोग होते हैं. मैं I will give you one example. I became country head for one of the very big company. तो मैं उनका इंडिया हेड था एक टाइम पे. तो इंडिया हेड बनने के लिए मैंने क्या कुछ मेहनत करी, मैंने पुश किया, नहीं मुझे इस कंपनी में इंडिया हेड बनना है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया. मुझे बस एक ही चीज पता है, मुझे जहाज बहुत पसंद है. मैं तो जो मौका लगे, मैं बॉम्बे पोर्ट में कोई मुझे बुला ले किसी काम से, मैं पहुंच जाता हूं उधर. तो ऐसे ही मेरे किसी और कंपनी में somebody was very happy with me, not even a senior position, somebody very normal position, and he was like, सर ये कंपनी में मैं हूं, सेल कर रहा हूं, और ये कंपनी में एक कंट्री हेड चाहिए क्योंकि ये आदमी छोड़ के जा रहा है. बोला ठीक है, जा रहा होगा. बोलते सर आप परफेक्ट हो इस नौकरी के लिए. ठीक है होगा यार, ऐसा तू सोचता है, पर वहां का बॉस तो नहीं सोचता ना शायद. सो long story short, it just happened. Why? Because somewhere I keep loving ships, I keep doing my job, and I keep loving it. A minimum input है, मतलब मैं मेहनत इतनी सी कर रहा हूं पर मुझे रिवॉर्ड इतने बड़े बड़े मिल रहे हैं. Because somewhere I'm on the right path.
अब ये मैंने आपको फिजिकल पार्ट समझाया, अब इसको आप एक स्पिरिचुअल एंगल से देखो, इसको आप एक इमोशनल रैशनल एंगल से देखो. Why is my effort minimum? Why is my input minimum? It is because it is not even an input for me. मुझे तो मजा आ रहा है. मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करी 1992 में एंड 2003 एंड में आई वॉज अ कैप्टन. 28 साल की उम्र में आई वॉज अ कैप्टन. I was commanding a very big container ship at the age of 28. ये कैसे हुआ? मैंने कुछ प्लान नहीं किया, पर मुझे ये मालूम था कि मुझे तो सेल करना है, क्योंकि मुझे मजा बहुत आ रहा है. तो मैं घर में कम बैठता था. जैसे ही मेरा टाइम हो जाता था एग्जाम्स का, मैं एग्जाम देता था. मेरे कोई भी सी टाइम के बीच में इट वाज नेवर बीन मोर देन 1 month or 2 months एक्स्ट्रा दैट आई हैव डन. Like I finished my cadetship of 33 months and we got 3 months from college. उस समय कॉलेज से 3 महीना मिलता था, तो 36 months हो गए. मैं 33.5 months में मैं उतर गया और मजे से कैडेटशिप करी. अब मजे से कैडेटशिप करी का डेफिनेशन किसी के लिए कुछ और भी हो सकता है. अब मजे से मतलब मेरी ले ली चीफ ऑफिसर ने, पर मुझे मजा बहुत आ रहा था, उसको मजा आ रहा था, मैं भी मजा ले रहा था. यू नो, sorry to use such language, but that is what the fun is. अब कोई सोचेगा कि सर ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी थी, आपने ये कर लिया, निकल गए. ओके, आई एग्री विद यू. अब आप देखो, आई एम कमिंग ऑनलाइन विद यू बॉयज, आई एम एंजॉइंग. मैं कोई काम थोड़ी कर रहा हूं आपके साथ, ये मेरा पैशन है. आप में इतने लोग अभी लॉग इन हो रहे हैं, कम्युनिटी बढ़ते जा रही है, बट एक भी आदमी आएगा तो मैं ऑनलाइन आऊंगा. कोई नहीं आएगा तो शायद आई कैन नॉट टॉक टू नोबडी, बट एक भी आएगा तो मैं अपना काम करूंगा. क्यों? क्योंकि मुझे तो मजा आ रहा है. जितना प्रिंसिपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उतना ही मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूं. इट इज लाइक अ बाथ. मैं खुद नहाते जा रहा हूं उस प्रिंसिपल के साथ. तो इसीलिए रिमेंबर, नंबर 1 प्रिंसिपल, प्लीज राइट इट डाउन, दैट द यूनिवर्स इज परफेक्ट. और ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोग बार बार रिपीट करेंगे. हमने टॉक्सिक पीपल के उसमें भी हमने ये बात करी कि यूनिवर्स इज परफेक्ट. अगर यूनिवर्स परफेक्ट है, अर्थ बराबर घूम रही है, सन बराबर चल रहा है, साले प्लांट बराबर उग रहे, तो मेरी जिंदगी क्यों तकलीफ में है यार? मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? वो क्योंकि तुम सोच रहे हो तुम्हारा काम नहीं हो रहा, एक्चुअली तुम्हारे लिए एक बड़ा काम प्लान्ड है, बट तुम छोटा काम करने में लगे हुए हो. तुम सोचते हो कि मैं जीपी रेटिंग में जाना चाहता हूं, मुझे जहाज क्यों नहीं मिलता? अरे ऊपर वाला बोलता है, इंटेलिजेंस बोलती है, यूनिवर्स बोलता है, तू जीपी रेटिंग के लिए नहीं बना है भाई, तू बड़े कामों के लिए बना है. पर तू लगा पड़ा है जीपी बनना है, मुझे जीपी बनना है. सो नंबर 1 लॉ ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स इज परफेक्ट. अब ये अगर रोज अपने आप को रिपीट करोगे तो आप कभी अपनी जिंदगी को क्वेश्चन नहीं करोगे. आप हर समय सोचोगे ठीक है, यूनिवर्स परफेक्ट है, दैट मीन्स मुझे जहाज नहीं मिल रहा है, तो इसमें मेरे लिए क्या मैसेज है, मुझे कहां डायरेक्शन लाइफ की लेके जा रही है. बहुत इजी हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा. पर मैं समझ रहा हूं कि लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कुछ है. मेरे को रोज मैसेजेस आते हैं, मेरे को रोज के कम से कम 100-150 मैसेज आते हैं कि सर मेरी यहाँ हेल्प करो, मेरी वहां हेल्प करो, वो करो, ये करो, मैं क्या करूं, मेरे को ये हो गया, मेरे लाइफ में ये हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है. सबके इश्यूज हैं. एंड इसीलिए हम लोग ऑनलाइन आ रहे हैं कि मैं इंडिविजुअली तो सबकी ऐसे हेल्प नहीं कर सकता, पर आई कैन डू वन टू ऑल. आई कैन गिव यू द मैसेज वन टू ऑल, because I have learned these things the hard way.
I've learned it after being a captain for so long. I've learned it after being a hypnotherapist, a counselor, counseling so many people, and after being a life coach, चक्रा हीलर, चक्रा हेल्थ, ये सब चीजें बहुत रिलेटेड हैं, सब कुछ बहुत रिलेटेड है. I know so many people. I know my friend who loved ships at one time, but later on, after becoming second officer, he never was so happy. तो उसने, he loved music systems. वो उसने अपनी कंपनी शुरू कर दी. 1997-8 की बात कर रहा हूं मैं. उसने अपनी कंपनी शुरू कर दी. He started dealing in music systems in Bombay. He did better than any captain can do. I know my own cousin. उसने हमारे खानदान को देख के उसने भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करी, पर फिर वो भी सेकंड मेट के बाद फेड अप हो गया. वो फिर उसने जब छोड़ी, उसने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया. टुडे ही इज richer than anybody else that you can imagine. Richer छोड़ो, he's doing what he believes he wants to do. ये नहीं कि मर्चेंट नेवी को गाली दे के सेल करते रहो, वो नहीं करना. जो लाइन आपको इतना बड़ा बना रही है, आप उसको गाली दोगे तो वो आपको उल्टा ही ट्रीट करेगी. सो नेवर अब्यूज वेयर यू आर, बिकॉज यू ओनली आस्क्ड फॉर इट. तुमको नहीं चाहिए तो यू मेक अ न्यू डिसीजन. लाइफ विल गिव यू अ न्यू डायरेक्शन. सो यूनिवर्स इज परफेक्ट. ये लॉ को आप बांध लो, अपने कबर्ड पे लिखो, अपने घर में स्टेंसिल मार दो इसको. यूनिवर्स इज परफेक्ट. अभी इसी के आगे अपनी जिंदगी को चेक करो. अब दूसरा बहुत मेजर लॉ है जो हमने टॉक्सिक पीपल के टाइम पे भी हमने बात करी थी. आई वॉन्ट समबडी टू टेल मी व्हाट इज दैट सेकंड लॉ. ओके, मनिंदर रंधावा, वर यू देयर इन आवर लास्ट सेशन? आई डोंट थिंक यू वर देयर. Everything in your life is the mirror of what अरे you are. वाह अनुष, एवरीबॉडी गिव हिम अ बिग क्लैप. बहुत बड़ी बात है. एंड ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये बोलते ही देखो, कोई भी चीज मुंह पे आने से पहले वो थॉट में आती है, वरना वो यहाँ आएगी ही नहीं. तो आपको खुद भी नहीं रियलाइज हो रहा है दैट यू आर चेंजिंग because you're thinking, and that's why you're speaking. Speaking is already action. मुंह से बोल दिया मतलब एनर्जी आ गई, बोल दिया एक्शन हो गया. So life is a mirror. Every relationship is a mirror. Everything happening around you is a mirror of what you are. तो अगर मेरे रिलेशनशिप घर पे खराब चल रहे हैं तो वो सिर्फ मुझे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. अब वो खराब चल रहे हैं क्योंकि मुझे जहाज नहीं मिल रहा और क्योंकि मैं घर पे बैठा हूं, तो ये सब आपके बहानेबाजी है. आप अपना तरीका चेंज करो, अंदर से चेंज करो, बाहर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए. लाइफ का रिमोट कंट्रोल ऑफ द चैनल इज इन योर हैंड्स. फंडे ज्यादा नहीं देने हैं हमको. लाइफ इज वेरी सिंपल. ये 2-4 लॉ हैं, ये 2-4 लॉ पकड़ के चलोगे ना, कभी रॉन्ग हो गई नहीं जिंदगी में. एंड वन ऑफ यू विल वन डे बी शिप ओनर. आई कैन टेल यू दैट. इफ दैट इज योर माइंड एंड दैट इज योर ग्रोथ. आज मैं शिप ओनर नहीं हूं. क्यों नहीं हूं? क्योंकि मुझे नहीं बनना है. You know, that is not success for me. I don't want to own a piece of metal. I rather run it and I take care of the people and the relationships and the crew. That is my success. So if your success is to buy a ship, then one day you'll be able to buy a ship. Follow this law. This law never goes wrong. अब इस लॉ के साथ आपको शिप नहीं मिल रहा है, let us say, and you're waiting. Keep in mind, universe is perfect.
Now I'm waiting. And everything outside is reflecting a part of me. So what is it that I am relating with, which I am going through? मुझे शिप नहीं मिल रहा है. शिप ना मिलने के कारण मेरे अंदर क्या फीलिंग जनरेट हो रही है, उस फीलिंग को आइडेंटिफाई करो. वो जो खालीपन की फीलिंग है ना, वो फीलिंग आपकी रिक्वायरमेंट है. वो फीलिंग शिप पे ना जाने के कारण नहीं आ रही. आज शिप पे ना जाने के कारण नहीं आ रही है, कल को वो गर्लफ्रेंड ना मिलने के कारण आपको सेम फीलिंग आएगी. बिकॉज दैट फीलिंग इज योर वांट. गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर विद मी. गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. Whoever's not, ये कम्युनिटी में रहोगे, ये बातें सुनोगे, तो आपकी जिंदगी की क्लैरिटी बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी. बहुत यंग एज में तो आपको हमारी तरफ गिरना नहीं है वो सीखने के लिए. मैं 45-46 की एज में आके मैंने वो मैच्योरिटी अब देखी. लास्ट 10 साल में मैं अपनी मैच्योरिटी देख रहा हूं, वरना उसके पहले तो हम भी बेवकूफ थे, यू नो. पर आपको वो करने की जरूरत नहीं है. आप आज मेरे से 80% मैच्योरिटी खींचो और मेरी गलतियों से, मेरी नॉलेज से use that to your advantage, and from there make your career even bigger. That I am generating by waiting for a ship is a feeling that I want to have. That is why life is giving it to me. Now change your feeling and you will find life will start changing. If you're feeling sad, you cannot listen to fast music. Can you listen to fast music, Rohit? If you're feeling sad, you cannot listen to fast music. But if you start listening to fast music, you cannot feel sad. तो लाइफ के बाहर का रिमोट कंट्रोल चैनल का तुम्हारे हाथ में है. सो आइडेंटिफाई कि मुझे ये जो फीलिंग है कि मेरे को शिप नहीं मिल रहा है, ये फीलिंग जो मुझे जनरेट हो रही है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है. कहीं ना कहीं मैं ही मांग रहा हूं. ये मुझे सैड रहने की आदत सी हो गई है. एक क्लास वेयर यू ओपन योर हार्ट. Why you open your heart here? Because this is a universal class. भाई यहाँ पे आके अपनी दिल की बात करोगे तो उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको. You will find all the answers. We are all reflecting each other. जिसको भी आज जो भी इश्यू है, आप में से बाकी जितने ज्यादा लोग आज लॉग इन हुए, वो सबका इश्यू है कहीं ना कहीं, इंक्लूडिंग माइन. You're getting a feeling of being void, feeling of emptiness by not getting a ship. Then somebody else is getting the same feeling of the feeling of emptiness by some other means. But actually, it's the feeling generation which is their requirement. आपको जिंदगी में वो कुछ नहीं मिलेगा जो आपको नहीं चाहिए. ये आप ही मांग रहे हो. आपको ही ड्रामा चाहिए अपनी जिंदगी में. कई लोग बोलते हैं यार मेरे को ना मर्सिडीज चलानी है, मेरी जिंदगी का एम है मर्सिडीज चलाना. तो मैं बोलता हूँ अगर तुम्हें आजकल तो वो जूम कार में मर्सिडीज मिलती है, वो जूम कार से जाओ, 1000 रुपए भरो दिन का, कुछ ज्यादा खास नहीं है, मर्सिडीज चलाओ. वहां से शुरू होता है सेकंड क्वेश्चन. नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं चलानी, मेरी होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए, मुझे चलानी चाहिए. अच्छा अच्छा, ये तुमने स्पेसिफाई नहीं किया, तुमने बोला मर्सिडीज चलानी है. तो देखो, लाइफ विल कीप गिविंग यू व्हाट यू वांट. यू हैव टू बी वेरी क्लियर
and go in the direction, believe in the universe, and keep flowing because universe is perfect. अभी तुम्हारे लिए एक प्लान बना हुआ है कहीं ना कहीं तुम्हारी ग्रोथ के लिए. So we have to have faith in the universe. We have to realize that the outside universe is a direct reflection of me. ये दो प्रिंसिपल बांध लो एंड आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में, इंक्लूडिंग रिलेशनशिप्स, इंक्लूडिंग whatever is happening. अगर आपकी टेबल गंदी है and the table is a direct reflection of what is going on in your mind. अगर आपको शिप नहीं मिल रहा है, वो शिप ना मिलने से जो फीलिंग जनरेट हो रही है, वो फीलिंग इज योर रिक्वायरमेंट. सो चेंज दैट फीलिंग, change that feeling, and you'll suddenly find the external universe will change to match the feeling that you are going through. And किसी को भी क्वेश्चन है, प्लीज क्वेश्चन पूछो. जिस पॉइंट्स पे मैं पूछ रहा हूं कि आपको कोई डाउट है तो पूछो अपना डाउट, शर्मा मत इधर. आपका क्वेश्चन सबका क्वेश्चन है, सर कैन यू एक्सप्लेन अबाउट मेडिटेशन, डज इट हेल्प इन? Yes, of course it helps, but we are not going in meditation. Exactly my question, उस पे अगर आपको कोई doubt है तो you ask me. So the feeling which is getting generated by the situation that you are going through, that feeling is your requirement. That feeling is your creation. You don't want that feeling, you change the feeling that you're feeling, and you'll find your external environment will change. And universe पे भरोसा, तो you will find life direction बदलती रहेगी. Yes, Udyan. Udyan has a question. बोलिए Udyan. And then we'll take Avito. Okay, quick अपना question Yes, sir. पूछो. Even after changing the feeling, and I want to keep my goal same. But Okay. the feeling after changing the feeling, I deviate from my goal. So is it compulsory that it will make me feel better, or What is the measuring unit of success? कोई आदमी आज कितना सक्सेसफुल है, happiness? कैसे measure करोगे? How happy the person is. Very good, Udyan. Very good. I'm so happy you are so evolved at your young age. So, if the goal needs to be changed for the purpose of being happy, you change the goal. If the goal doesn't need to be changed for the purpose of being happy, don't change the goal. But change that feeling that you're going through. अभी एक एग्जांपल ले लो, किसी को एक्टर बनना है, ओके, उसको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, फिल्म इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट होना है. पर जब बंदा फिल्म इंडस्ट्री में एसोसिएट होता है, ऑन एंगर मैनेजमेंट विल बी कवरिंग अ क्लास ऑन लीडरशिप, विल बी कवरिंग अ क्लास ऑन मेडिटेशन, विल बी कवरिंग क्लासेस ऑन मेनी टॉपिक्स. ओके, सो दिस इज ऑल्सो असर्टिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिसमें आपको नहीं ठीक सुनाई दे रहा है तो स्पीक अप, अपने अंदर मत रखो, बात को बोलो, क्योंकि वो सबको तकलीफ हो रही है पर कोई नहीं बोल रहा है. यू नो, जिस तरह हमारा एक क्वेश्चन है कि शुड आई आस्क दिस क्वेश्चन और नॉट, आस्क, बिकॉज व्हाट यू आर गोइंग थ्रू somewhere everybody will relate with it. Otherwise your question is not valid for this class only, and वो हो नहीं सकता because universe is perfect. तो ये कुछ नॉर्म्स हैं, हम लोग बहुत क्लियर रखेंगे. यूनिवर्स इज परफेक्ट. आज चलते चलते कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊं, वो गलत नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स इज परफेक्ट. अब यूनिवर्स परफेक्ट है, उसमें डेथ तो इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. द ओनली थिंग वी आर श्योर अबाउट इज डेथ. सो लेट्स गेट टू उदयन's क्वेश्चन अगेन. So Udyan, your measuring unit is happiness, and if it means that you maintain your goal but you don't
attach yourself to the pain of the goal. Suffering तुम्हारी चॉइस है. मुझे अगर ऑनलाइन आना है तो ऑनलाइन मैं टेढ़ा होके अपनी पीठ टेढ़ी करके मैं ऑनलाइन बैठूं, वो मेरी चॉइस है सफर करने की. पर अगर मुझे अपनी जिंदगी सुधारनी है, मैं ऑटोमेशन कर करके अपनी लाइफ सुधारूंगा, अपनी चेयर बेटर करूंगा, बिकॉज मुझे वो करना है. पर मैं उसमें से वो सफरिंग निकालूंगा. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हिप्नोथेरेपी डज. हिप्नोथेरेपी क्या करता है? इट डज नॉट चेंज योर लाइफ सिचुएशन. हाउ कैन आई चेंज योर लाइफ सिचुएशन? बिकॉज लाइफ सिचुएशन ओनली यू कैन चेंज. But I can remove the pain. I can remove the suffering from the same situation. That sir, when I asked Merchant Navy officer that sir, can I join Merchant Navy? They always told me that Merchant Navy is not good for nowadays. You just choose other professions. Why, sir? I almost asked 50 to 20 officers, sir. They told me same. Okay. So I had given a very nice example about this. There are two very good examples for this. Number one, you ask a doctor, sir, आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे? वो बोलते हैं जिंदगी में कुछ भी बनना, डॉक्टर मत बनना. मां बकवास लाइन है. क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद उस लाइन के सिर्फ तकलीफें झेली, सफरिंग झेली, तो वो बोलते हैं कि ये इससे बेटर बहुत सारे काम है जिंदगी में, वो करो. ऐसे ही मर्चेंट नेवी वाला जो खुद खुश नहीं रहा मर्चेंट नेवी में, मेनी रीजंस के कारण, बहुत रीजंस होते हैं ना. मैं खुश हूं मर्चेंट नेवी में, मैं था खुश. जब तक मैं खुश था मैंने सेल किया. जब मेरे को लगा यार अब टाइम हो गया सेलिंग छोड़ने का, मैंने एक 60,000 की नौकरी, मेरी सैलरी, मेरा स्केल होता था बहुत हाई स्केल था मेरा. पर मैंने रियलाइज किया अब इट्स टाइम टू लीव सेलिंग. वो स्केल मैंने छोड़ दिया और मैं शोर में आ गया. मेरी नौकरी मैंने पहले दिन शुरू करी, मेरी नौकरी थी 60,000 रुपए महीने की. अब कोई बोलेगा तू तो बेवकूफ है. मैंने बोला भाई मैंने चूज किया है, मुझे अब नहीं सेल करना है. अब दूसरा आदमी क्या बोलेगा, क्या नौकरी है, घर छोड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है. अरे तो छोड़ दो ना, फिर तुम्हें वो पैसा भी नहीं छोड़ना. हाँ, 10-15 लाख रुपए महीने के मिलते हैं तो आदमी उसका स्लेव बन जाता है उस पैसे का. समझ रहे हो शुभम? Yes sir, got it. तो आदमी उसका स्लेव बन जाता है और फिर वो अपने उस स्लेवरी से बाहर नहीं आना चाहता और वो क्रिप करता रहता है. You have to draw your priorities. You have to realize this line gives you so much money. And if money is not your priority, then make your plan, make your goal. पैसा बनाओ, शोर में आओ. या फिर पैसा बनाने के लिए सिर्फ मर्चेंट नेवी की जरूरत नहीं है. शोर में बहुत नौकरियां हैं जिसमें आप बहुत बड़े बन सकते हो, पैसा बहुत कमा सकते हो. बट पैसा कमाना कैन नॉट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, अदरवाइज यू विल ऑलवेज बी अनहैप्पी. अब मैं आपको बोलूंगा कि शुभम मैं तुझे 1,000 रुपए दूंगा महीने के, 1,000 रुपए दूंगा हर घंटे के, आप मेरे को एक टांग पे खड़े होके ऐसे खड़े होके रहोगे क्या? पर किसी योगी को बोलोगे आप एक टांग पे खड़े होके ऐसे रहिए, वो पैसे के लिए थोड़ी, वो तो वैसे ही खड़ा हो जाएगा और खड़ा रहेगा ऐसे दिन भर. सो यू गेट द पॉइंट. It can never, money can never be a driving force. It can be one of the necessities and requirements, but it can never be a driving force to choose a career. Two ideal people are trying for like one job, for example. So the same post, which two people want. So, but since the universe is perfect, that job is for only one of them. So in that case, is the universe going to like punish one of them or something? Like something bad will happen to him, and
or like does one of them like keep trying and then finally like say, okay, it's not happening, so let go, and then the second person will get it? Very good question, Abhito. See, I am here in this, whatever I'm doing today in my life. Suddenly, I get an option to go in the film industry. Okay, so I'm also an active model. जिसको नहीं पता है, I'm also an active model. I've been doing some amount of modeling. I've been in 1 or 2 web series also. पर उस वेब सीरीज में जो दूसरा एक्टर मेरे कंपटीशन में था, if he was selected, for me it doesn't make a difference because मैं तो by the way कर रहा हूं ना. So similarly, everybody who's coming for one job has got various other jobs or passions that he's getting into. You are always, if you're trying to buy a car, you're choosing 3 or 4, you're shortlisting 3 or 4 cars, and then you're seeing how things go and you go for it. Now, finally, the car which you left, somebody else bought it. That is a universal way of creating a balance. Now, to put the same thing in a different manner to you, never go with the feeling of lack. मतलब दुनिया में 2 आदमी के लिए है ही नहीं. भागो, पकड़ो, जो मिल रहा है उसको पकड़ो. That is called the feeling of lack. That means you're going from you don't have a feeling of abundance. अरे बाबा, आज की डेट में दुनिया भर का गेहूं है सबके लिए, पर क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं पकड़ लूं सारा गेहूं तो थोड़ा लैक क्रिएट हो रहा है. Otherwise, the universe has given enough for everybody. Now, again, you have to remember the principle. Universe is perfect. So if you did not get that job, you have to realize that there is something different and better for you, because universe is completely abundant for everybody. सबके लिए बहुत है इधर, सबके लिए बहुत है. अब किसको नहीं मिल रहा है वो उसकी खुद की थिंकिंग के ऊपर है और उसको क्या चाहिए उसके ऊपर है. कोई बोलेगा मुझे मर्सिडीज क्यों नहीं मिल रही. अरे यार, अभी मर्सिडीज में दिमाग सेट करके बैठे हो तो नहीं मिल रही. 4 व्हीलर तो चला रहे हो, 2 व्हीलर तो चला रहे हो. Now this is where human behavior starts coming in. And remember the principles, the 2 laws. Don't forget these laws. These laws we will repeat every time we meet. The universe is perfect. I will never question that law. The universe is perfect. If universe is perfect, I did not get this job, somebody else got it. It's meant to be like that. Because probably that person has a real passion and he will one day really enjoy it. And you are not going to enjoy it, so it's better you don't get it. अंगूर खट्टे हैं वाला सीन है तो ठीक है, अंगूर खट्टे हैं. यहां सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है. अगर वो एटीट्यूड नहीं बनाया सेटिस्फैक्शन का तो जिंदगी भर रोते रहोगे. कल मर्सिडीज चलाओगे तो रोओगे. मर्सिडीज में बैठ के रोने का कंफर्ट जरूर आएगा. साइकिल पे बैठ के रोना थोड़ा और डिफिकल्ट होगा, वो सीट घुस जाएगी पीछे. पर मर्सिडीज में बैठ के रोने में कंफर्ट जरूर आएगा, रोगे जरूर, क्योंकि आदत तुम्हारी है रोने की. और अगर हंसना है ना तो साइकिल पे स्कूल में कैसे मस्ती में हम लोग साइकिल चला के जाते थे. Who cared a shit?
So, number one law, universe is perfect. Number two law, everything around you is a mirror of what you are, including your relationships that you go through. Thank you so much, everybody. Have a great night. Next, please spread the message to your other friends, family. You can even bring your family online. There's no problem. ये ऐसा नहीं है कि हम ये शिप्पी लोगों के लिए है, ये सब हर इंसान के लिए है। सर एक क्वेश्चन है मुझे। हाँ बोलिए। ओके सर, तो जैसा सेशन में आपने बताया कि यूनिवर्स हैज अदर प्लान, बराबर, मे बी यूनिवर्स हैज अदर प्लान, बेटर प्लान। लेकिन सर जैसे इन माय केस, मैं बचपन से ही एक जहाजी बनना चाहता हूँ। बचपन से ही, मतलब मैं उस लाइफस्टाइल को, उस रूटीन को, उस एनवायरनमेंट को एडमायर करते हुए, और मेरी विश है कि नहीं मुझे वही बनना है, बराबर। तो नो डाउट मैं अभी मेरा यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, मे बी नेक्स्ट 2 महीने में मैं यहाँ पे सिटी हेड भी बन जाऊंगा, बराबर। लेकिन सर जो मेरी बचपन से एक विश रही है, मेरे एक सपना रहा है, बराबर, कि नहीं मुझे जहाज ही बनना है, मुझे शिप ज्वाइन करना है, मुझे वही लाइफस्टाइल चाहिए। तो क्या सर ऐसा सही होगा, जैसा आपने बताया कि मैं ऐसा सोचूं अभी से, बराबर, कि मे बी फ्यूचर हैज अदर प्लान, डेस्टिनी हैज अदर प्लान, तो क्या ऐसा सही होगा सर कि बाद में फिर मुझे रिग्रेट नहीं होगा कि यार नहीं यार मैंने क्यों गिव अप कर दिया, यार मैं तो बचपन से ही जहाज में ही जाना चाहता था, तो फिर यार मैंने ऐसा क्यों सोच लिया वहां पे कि यार नहीं यार मेरी डेस्टिनी में यही लिखा होगा, तो ये सर सही होगा? इसमें एक रैशनल सही गलत वही है जो आपके लिए सही गलत है रौनक। यहाँ पे जितने 20-25 लोग हैं ना, वो आपके साथ उस चीज में नहीं रिलेट कर पाओगे, क्योंकि वो आपकी फीलिंग है, आपकी थिंकिंग है। उसके लिए 1-to-1 काउंसलिंग की जरूरत होती है। एंड व्हाट यू कैन आल्सो डू इज कि आइडेंटिफाई कि मेरा एक सपना है कि मुझे जहाज की नौकरी का फील लेना है, या मुझे जहाज का फील लेना है। अब जैसे हमने बात करी कि आज की डेट में मर्सिडीज जूम कार पे भी मिलती है, तो उसी तरह से आप अपनी नौकरी करो और जाके क्रूज का एक्सपीरियंस करो। आपको जिंदगी में वो फीलिंग और एंजॉयमेंट लेने के मौके बहुत हैं। आपको जाके रगड़ने की जरूरत नहीं है अपने आप को जीपी रेटिंग बन के। आपको भगवान या ऊपर वाला इतना ज्यादा पैसा दे, इतनी ज्यादा लग्जरी दे कि आप हर साल एक क्रूज शिप पे जाओ। बोलो कि भाई मैं 1 महीना अपना साल का मैं सिर्फ क्रूज शिप पे निकालता हूं। क्यों ऐसा नहीं सोच रहे तुम कि मेरा पैशन है? एंड मैंने जो नौकरी करनी थी वो करी, उस नौकरी में इतना दिल दिया कि आज मैं इतना बड़ा हूं उधर, और साथ साथ बड़े होने के साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट की तरह पैसा आता है। और बाई प्रोडक्ट की तरह जब पैसा आता है तो तुमने ये सोच रखा है कि मेरी जिंदगी का एक पैशन है जहाज, इसीलिए मैं हर साल 1 महीना मैं क्रूज पे ही जाता हूं। या जाओ बॉम्बे में जाओ, किसी भी सिटी में जाओ, एक यॉट हायर करो, 15 दिन के लिए यॉट हायर करो, जाओ वहां पे जीपी रेटिंग की तरह रगड़ो उस यॉट को। आप समझ रहे हो अभी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर। तो अपनी फीलिंग को मत मारो। कोई आदमी बोलेगा मुझे एक पेंटर बनना है, पेंटर बनना है तो यार बाकी काम करो, साथ साथ पीछे पीछे पेंटिंग करो। अब नहीं मुझे पेंटर बनना, मुझे पेंटर ही बनना था, तो करते रहो पेंटिंग। एक दिन तुम्हारी पेंटिंग दिल से बना रहे हो तो वैसे ही रिकग्नाइज हो जाएंगी। धोनी को क्रिकेट बहुत पसंद था, पर रेलवे में नौकरी करता था ना, रेलवे की नौकरी के थ्रू चला गया स्पोर्ट्स में। मिल्खा सिंह was so interested in running, but he was part of the army and he started running for the army. अब वाया बहुत तरीके होते हैं कि लाइफ अपने आप आपको रास्ता दिखाती है जो आपका ट्रू पैशन है। अब आप इसको भी ये क्वेश्चन करो, अब आप ट्राई करो सी का एक्सपीरियंस लेने के लिए ऐसे इस तरीके से। आप 1 महीना करने के बाद आप अपने सेटिस्फाई हो जाओगे खुद ही कि आई एम फाइन। सो यू नो दिस इज कॉल्ड एविटो। आई विल जस्ट टेक योर क्वेश्चन। काउंसलिंग में ना इसको हम बोलते हैं डोर नॉब क्वेश्चन। डोर नॉब क्वेश्चन क्या होता है? जब हम लोग 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं ना लोगों की,
1-to-1 मैं बहुत कम करता हूँ बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ माई टाइम, बट किसी को 1-to-1 चाहिए एंड दे कैन अफोर्ड माई टाइम, देन दे आर मोस्ट वेलकम, है कि नहीं? If they can afford to buy my time, they are most welcome. Otherwise, come on Zoom class. I'm going to share things you will anyway learn. But this is called doorknob question. पूरा काउंसलिंग सेशन खत्म हो जाता है तो आदमी जब दरवाजे का नॉब पकड़ता है ना खोलने के लिए, तो लास्ट में जाते जाते क्वेश्चन पूछता है, और वो होता है रियल क्वेश्चन, वो होता है रियल क्वेश्चन, क्योंकि वो लास्ट मिनट तक एक अंदर रहता है, पूछ ही लेता है। एक्चुअली वही सबसे ज्यादा बड़ी चीज होती है जो उसको बॉदर करती है, ठीक है? तो इट इज अ ग्रेट थिंग, प्लीज ask question. If I can answer your questions, there is an answer to everything, trust me. मैंने एक चीज देख ली लाइफ के बारे में, there is an answer to everything. Good night, have a great evening, enjoy your life. रोज सुबह उठ के थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, जैसा मैंने वीडियो में बताया आप लोगों को। रोज सुबह उठ के थैंक यू बोलो, 10 चीजों को थैंक यू बोलो, आपको पता चलेगा कि आपकी वो 10 चीजें खत्म ही नहीं हो रही। वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्स इज परफेक्ट। Say thank you, and down the line I'm going to share more than 520 principles and things of life. 520 means 52 weeks, मतलब 10 साल हम लोग मिलते रहेंगे और आप हर सेशन के बाद चेंज होगे। प्लीज ब्रिंग इन मोर फ्रेंड्स, फैमिली, and let's all make this a beautiful life for ourselves, because life is very beautiful. Nobody should ever feel कि मैं कहाँ फंसा। बहुत परफेक्ट लाइफ है, ठीक है? एंजॉय करना है, मस्ती करो, रोज दिन का जूस निकालो, बिकॉज यू नेवर नो, सो एंजॉय योर लाइफ। ओके गाइज, गुड नाइट, कैप्टन अमित भंडारी, सी यू ऑल नेक्स्ट थर्सडे। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. बाय बाय।